কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখন তিনিখন আইন অনা হৈছে আৰু এই তিনি আইনৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি জনাইছে যে এই তিনিখন আইনৰ জৰিয়তে এতিয়া কি ব্যৱস্থা বা আইনী প্ৰক্ৰিয়াত কি পৰিৱৰ্তন হ'ব এই কথা উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কেনে ধৰণৰ শাস্তি অনা হ'ব এই আইনৰ জৰিয়তে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীৰ বাবেও কিছু নিয়ম থাকিব আৰক্ষীয়ে নিয়মৰ মাজেৰে সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব বাধ্যবাধকতা থাকিব বাবে আৰু তাৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব আৰক্ষী আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম এটা ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যে কেৱল অপৰাধী নহয় আৰক্ষীও এতিয়াৰ পৰা বিপদত পৰিব নতুন আইনত আৰক্ষীৰ বাবে কেইবাটাও নতুন নিয়ম অনা হৈছে কেইবাটাও নতুন নিয়ম আৰক্ষীৰ বাবে অনা হৈছে আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক এতিয়াৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক 3 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিবই লাগিব আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিব লাগিব তদন্ত কৰি শেষ কৰিব লাগিব 7 দিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত 90 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে একোটা গোচৰৰ চাৰ্জ শিট প্ৰদান কৰিব লাগিব বা দাখিল কৰিব লাগিব আৰু কোন অপৰাধীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে তাৰ ই পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক তালাচী অভিযান চলাওঁতে আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে বেল লাভ কৰা বা জামিন লাভৰ বাবে অপৰাধীয়ে এতিয়াৰ পৰা আদালতত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নহ'ব জেলৰ অধ্যক্ষ গৰাকীয়ে অপৰাধীক অপৰাধ অনুযায়ী ৰেহাই অনুযায়ী জামিন প্ৰদান কৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিগৰাকীক মেজিষ্ট্ৰেটৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰাব লাগিব আৰু সময় কম কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ বাবে এই চেষ্টা কৰা হৈছে বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন তিনি আইনৰ পাছতে খৰতকীয়া হ'ব এতিয়া দেশত ন্যায় ব্যৱস্থা মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধৰ বাবে কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নাবালিকা ধৰ্ষণৰ গোচৰত হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড লগতে হ'ব পাৰে মৃত্যুদণ্ডও আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত সংজ্ঞা দিয়া হৈছে সংঘবদ্ধ অপৰাধৰো সংঘবদ্ধ অপৰাধত ধৰা হৈছে ডকাইতি অপহৰণ ধন দাবী সুপাৰী কিলিং ইত্যাদি আৰু এনে অপৰাধত হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড অথবা আজীৱন কাৰাবাস আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰূপণ কৰা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদৰ সংজ্ঞাও এই নতুন আইনত নিৰূপণ কৰা হৈছে সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যত জড়িত হ'লে হ'ব মৃত্যুদণ্ড পৰ্যন্ত শাস্তি আৰু ৰাজদ্ৰোহৰো সংজ্ঞা দিয়া হৈছে নতুন আইনত এটা অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো যে অপৰাধীৰ লগতে এতিয়াৰ পৰা বিপদত পৰিব আৰক্ষীও সংবাদমেল যোগে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ঘোষণা আৰু বাধ্যবাধকতা অনা হৈছে আৰক্ষীৰ বাবে আৰক্ষীয়ে এতিয়া নিয়ম মানি কাম কৰিব লাগিব বিপদ আহিব পাৰে নহ'লে আৰক্ষীৰো আৰু সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে নতুন আইনত আৰক্ষীৰ বাবে আছে কেইবাটাও বাধ্যবাধকতা নিয়ম মানি আৰক্ষীয়ে কাম কৰিব লাগিব বুলি জনাইছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নতুন আইনত আৰক্ষীৰ বাবে কেইবাটাও নতুন নিয়ম আছে আৰু সেই নতুন নিয়মৰ অনুসৰি কাম কৰিব লাগিব আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰাটো বাধ্যতামূলক লগতে ই পঞ্জীয়নো কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু 3 দিনৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব লগতে 7 দিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহৰ ভিতৰত এটা ঘটনাৰ তদন্ত শেষ কৰিব লাগিব আৰু কোনো লোকক যদি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে তেনেহ'লে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ কৰাব লাগিব অভিযুক্তক বা গ্ৰেপ্তাৰকৃত আটক কৰা লোকগৰাকীক এটা ডাঙৰ খবৰ জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো বিপদ আহিব পাৰে আৰক্ষীও সময়ৰ ভিতৰত কাম কৰিব লাগিব এতিয়া আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে সংবাদমেল যোগে কি কৈছিল আমি সেই সংবাদমেলৰ ক্ৰদাংশ আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম किसी को पुलिस ले जाती थी परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है
उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय, लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में FIR दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है इसमें पुलिस अधिकारियों की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पीई का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशरी में 21,000 कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको उठाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन FIR की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था।
प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था। वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून था। राजद्रोह को हमने जड़ से समाप्त कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आए हैं। पहले सरकार के खिलाफ स्टेटमेंट देना गुनाह था, अब भारत की एकता और अखंडता को क्षतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा। तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बदलाव हुआ है, जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का। मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि ये तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली का सर्जन करेंगे। पहले दिनों तक किसी को पुलिस ले जाती थी, परिवार वालों को कोर्ट में आना पड़ता था। अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और ई रजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, जिससे हेबियस के माध्यम से कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। तलाशी और रेड दोनों स्थिति में वीडियोग्राफी की जाएगी, जिससे पुलिस के अधिकारों का दुरुपयोग न हो पाए। और हमने अपराधियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबित केसों में कानूनन बना दिया है, जिसमें एक निश्चित समय मर्यादा अपराध के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिहा किया जाए। तो इसके लिए कोर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, इंफॉर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति का भी अधिकार पहली बार भारतीय कानूनों में हम करने जा रहे हैं। 0 FIR, विक्टिम की FIR की प्रति की निःशुल्क प्राप्ति और 90 दिन में जांच का रिपोर्ट देने से इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। समय पर न्याय लगभग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निश्चित की है और ये टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा। 3 दिन में FIR दर्ज करनी है, 7 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट पीड़िता के सार्वजनिक करनी है, 60 दिन के अंदर ही अपराध तय करने हैं और घोषित अपराधियों के खिलाफ 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और आपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जजमेंट की घोषणा करनी है। तो कई जगह पे हमने समय को कम कर बाध्य कर हमने जल्दी से न्याय मिल पाए इस दिशा में काम किया है। हमने 3 वर्ष से कम कारावास में 60 वर्ष से अधिक उम्र में के लोग जो है, इसमें पुलिस अधिकारी की पूर्व अनुमति अरेस्ट के लिए अनिवार्य करी है। गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धाराएं हैं जिसमें पुलिस की जवाबदेही हमने सुनिश्चित करी है। पहली बार पीई का भी हमने प्रावधान इसके अंदर किया है। साक्ष्यों के संबंध में भी टेक्नोलॉजी को हमने बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के प्रति विश्वसनीयता बढ़े, इसके लिए कानूनी प्रावधान कड़े किए हैं। सर्वर लॉग, स्थान संबंधी साक्ष्य और वॉइस मेल, ये सब की व्याख्याएं की गई है। अब न्याय प्रक्रिया संविधान की 8वीं अनुसूची में
आने वाली सभी भाषाओं में काम करती हो जाएगी। हमारी स्थानीय भाषाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है। हमारा पूरा सॉफ्टवेयर जो बनेगा वो 8वीं अनुसूची में आने वाली सभी भाषाओं में बनेगा। कानून बनने के बाद, संसद ने पारित करने के बाद तैयारी के लिए ढेर सारा प्रयास भारत सरकार के गृह मंत्रालय और हर राज्य के गृह मंत्रालय और जस्टिस मंत्रालय ने किया है। लगभग 22.5 लाख पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए 12,000 मास्टर ट्रेनर्स बना दिए गए। कई इंस्टीट्यूशन को अधिकृत किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं। जुडिशरी में 21,000 कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको हटाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले हमने इसमें हमारे संविधान के स्पिरिट के तहत दफाओं की और चैप्टर्स की प्रायोरिटी तय की है। सबसे पहली प्रायोरिटी महिलाओं और बच्चों के अपराध को दी गई है और मैं मानता हूं कि ये करने की बहुत समय से पहले जरूरत थी। एक पूरा अध्याय इसमें जोड़ा गया है जिसमें 35 धाराएं हैं और 13 प्रावधान हैं, जिसमें गैंग रेप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास, आजीवन कारावास, नाबालिग के साथ बलात्कार में मौत की सजा, झूठा वादा पहचान छिपाकर शोषण करने वालों के लिए भी अलग से अपराध बनाया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से चलता था। पीड़िता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्थिति में और अपने परिजनों की उपस्थिति में लेने का भी प्रावधान किया है और इसके साथ साथ ऑनलाइन एफआईआर की व्यवस्था से भी ढेर सारी उत्पीड़न का सामना कर रही महिला एम्बरेसमेंट से बच पाएगी, ऐसा हमारा मानना है। सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराध के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं था। प्रावधान करने की मांग होती थी। पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभाषित किया गया है। नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्म स्थान, भाषा और अन्य कारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है, इसमें 7 वर्ष के कारावास से लेकर मृत्यु की सजा और आजीवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है। रात 2 एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने शासन की रक्षा के लिए बनाया, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे तिलक महाराज हो, चाहे सरदार पटेल हो, सभी लोग यही कानून के तहत 6-6 साल की सजा काटे थे। इसी कानून के तहत केसरी पर प्रतिबंध लगाया गया था।